Before we go ahead, we will quickly revise what we have seen in the last session. So, पिछले lecture में, if you remember, because of rain, very few of you were present for offline class. So I'll just quickly revise. So last session में we have derived what is potential energy of a single point charge in external field. In an external field. So we will do this without theory. सिर्फ concept क्या है वो देख लेंगे एक बार. तो हमारे पास एक external electric field है. We have some region of space. यहाँ पे एक region है. Here we have some external electric field. There is some external electric field. इसका source क्या है? We don't care. कहाँ से आया? We don't care. The only idea here is कि there is some pre-existing electric field. यहाँ पे कोई एक electric field already है. हमें करना ये था, हमें इस electric field में एक point पे एक charge को लाना है. And because we will be basically defining position of that point, इस पूरे field में कोई एक point है, some point. I will take some point as P. So I have a point P. इस P point पे मुझे एक चार्ज को लाके रखना है. इस P point का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर आपको याद होगा तो हमने लिया था R बार. तो पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R बार. एंड ये जो P पॉइंट है जिसका पोजीशन R बार है, रिमेंबर इस P पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल था वो उस पोटेंशियल को हमने डिनोट किया था V of R bar. So what is V of R bar? V of R bar is potential at point P due to external field. So external field का potential at point P is V of R bar. We want to bring a charge. हमको एक चार्ज लाना है Q इंफिनिटी से और उसको लाके यहाँ पे रख देना है. तो वर्क विल बी डन. Work will be done against the potential of external field, and this work done, अगर आपको याद होगा तो work done का basic formula था charge that you are bringing, this charge को move कर रहे हो into potential at that point, तो V of R bar. तो work done का formula हमेशा same रहता है. work done is charge into potential. charge कौन सा? the charge that you are moving. Right? तो ये work, this work will be stored in the form of potential energy of single point charge. Normally क्या होता है, single point charge का potential energy कितना होता है? 0. कब? जब हम एक चार्ज को इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पे रख रहे हैं और इस पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं है, there is no other potential, there is no other charge. तो जब कोई चार्ज नहीं था ऑलरेडी, कोई पोटेंशियल नहीं था, तो वर्क डन इज 0. So potential energy of a single point charge is always 0 in absence of external electric field. But potential energy of a single point charge in presence of external electric field is not 0. It is given by Q into V of R. और एक assumption है इसमें, ये जो चार्ज है Q, जिस चार्ज को हमने मूव किया, इस चार्ज का खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, it is so small कि ये external field को change नहीं करता, because you have external electric field. External electric field can also be changed if the electric field of charge Q is more in strength. तो हमारा assumption ये होता है कि जो small charge Q हमने shift किया, move किया, इसका electric field is very weak compared to external electric field. Then इसके बाद हमने देखा था what is potential energy of a system of 2 point charges. Potential energy of a system of 2 point charges, of a system of 2 point charges in an external field, in an external field. तो यहाँ पे भी आइडिया सेम है. हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ सम सोर्स
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग। कहीं से तो आया, कहाँ से आया, वी डोंट केयर। तो यहाँ से हम, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यू हैव 2 पॉइंट्स, एक है लेट अस से पॉइंट ए, एक है लेट अस से पॉइंट बी। वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव सम अदर पॉइंट बी। हम लोग यहाँ पे भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। So we have some Cartesian coordinate system x and y and z। ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 बार और इसका है r2 बार। तो यू हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ A एज r1 बार और इसका है r2 बार। और डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट लेट अस से इज r12। ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल जो था वो हमने लिखा था, अगर याद होगा ए पॉइंट पे हमने लिखा था, इफ यू रिमेंबर, एक्सटर्नल का v ऑफ r1 बार और b पॉइंट पे था v ऑफ r2 बार। तो जब हम सिर्फ v ऑफ लिख रहे हैं, v नॉट v1 नॉट v2, नॉट v1 नॉट v2, we are just writing down v, we are just writing down v। इसका मतलब ये है, ये एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। जब मैं v1 v2 v3 v4 स्पेसिफाई करूंगा तो वो चार्जेस का पोटेंशियल होगा। v ऑफ r1, r1 ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो v ऑफ r1 ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है ए पॉइंट पे। v ऑफ r2 ये एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है बी पॉइंट पे, राइट। तो जब हम पहला चार्ज मूव कर रहे थे फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वी आर मूविंग सम चार्ज, वी वांट टू कीप सम चार्ज, हम उसको इंफिनिटी से लाके ए पॉइंट पे रख देंगे। तो इन दिस केस वर्क डन इन मूविंग फर्स्ट चार्ज इज q1। कौन अपोज करेगा, ऑलरेडी कौन है, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड है। ए पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है, एक्सटर्नल फील्ड का है, वो कितना है, वो है v ऑफ r1। तो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। अब हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, उसको हम लोग इंफिनिटी से लाके कहाँ रखने वाले हैं, बी पॉइंट पे। तो इन दिस केस वर्क डन टू मूव सेकंड चार्ज। अब सेकंड चार्ज को दो अपोज करेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड और एक ए मतलब q1 चार्ज का फील्ड, क्योंकि ए पॉइंट पे कौन था, q1 चार्ज। तो हियर इन दिस केस देयर आर टू फील्ड विच आर अपोजिंग, एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक पहले चार्ज का फील्ड है। तो q2 एंड q2 किस किसने अपोज किया, एक्सटर्नल ने। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल कहाँ पे, r2 पे, तो v ऑफ r2 प्लस किसने किया, पहले चार्ज के फील्ड ने, लेकिन कहाँ पे, r2 पे, तो v1 ऑफ r2। ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो सिर्फ v1 लिख के छोड़ सकते हो, डजंट मैटर, यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस। तो दिस इज इक्वल टू q2 v ऑफ r2 बार प्लस q2 v1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, 1/4 pi epsilon 0 q by r। ये किसका पोटेंशियल है, पहले चार्ज का है, कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है। तो डिस्टेंस में क्या आएगा, r12, क्योंकि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, r12। किसका पोटेंशियल है, q1। तो 1/4 pi epsilon 0 q1 अपॉन r12। ये हो गया सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क। तो टोटल वर्क डन, total work done W is equal to W1 plus W2. W1 was Q1 V of R1. W2 is Q2 V of R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12। वही है Q1 V of R1, Q1 V of R1। Here you have Q2 V of R2, Q2 V of R2 plus 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12। तो ये हो गया टोटल वर्क, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो इन दैट केस आपको सिर्फ इतना मिलता, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ
वो है Q1 V of R1 प्लस Q2 V of R2। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। आपके सिलेबस में इतना ही है, दो चार्जेस तक का ही है, बट वी विल एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। हाउ? हम वी विल सी कि अगर हमको और एक चार्ज लाना है तो आई विल फर्स्ट टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आएगा आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू ऑलरेडी हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई। अब इन दिस केस वी विल टेक थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। हम तीन अलग अलग पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, ए पॉइंट, some point B and some point let us say C। A, B और C इसका पोजीशन है R1, R2 and R3 with respect to origin। तो पोजीशन वेक्टर है R1 बार, R2 बार एंड R3 बार। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब ये तीनों पॉइंट्स पे अभी तक कोई चार्ज लाया नहीं, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल फिर भी है एक्सटर्नल फील्ड का। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है V ऑफ R1 बार, B पॉइंट पे पोटेंशियल है V ऑफ R2 बार, C पॉइंट पे है V ऑफ R3 बार। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 1, 2 एंड 3, मतलब पॉइंट A, B एंड C। अब जब आप पहला चार्ज लाओगे, यू आर ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी कीपिंग इट एट पॉइंट A। Work done to bring first charge is Q1 V of R1 bar। क्योंकि पहले चार्ज को जब मूव किया तो सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल ने अपोज किया, मतलब एक्सटर्नल फील्ड ने अपोज किया। जब आप सेकंड चार्ज लाओगे, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज, तो दो अलग अलग पोटेंशियल अपोज करेंगे। एक होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक होगा पहले चार्ज का पोटेंशियल बी पॉइंट पे। तो जब आप सेकंड चार्ज को ला रहे हो, तो सेकंड चार्ज को जब ला रहे हो तो पहला चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बी पॉइंट पहले चार्ज के फील्ड में भी है, तो इसको कौन अपोज करेगा? पहले चार्ज का पोटेंशियल R2 की लोकेशन पे, V ऑफ R2। और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? R12। तो डिस्टेंस इज R12, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन टू ब्रिंग सेकंड चार्ज इज Q2 V of R2 बार प्लस Q2 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R12। यहाँ तक पिछला केस है, पिछला केस यहाँ तक था, लास्ट केस, राइट। अब आप तीसरा चार्ज लाओगे, तो अब जब तीसरा चार्ज लाओगे तो तीन अलग अलग पोटेंशियल इसको अपोज करेंगे। एक अपोज करेगा एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल V ऑफ R3, एक अपोज करेगा पहले का पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ R3, एक करेगा दूसरे चार्ज का पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ R3। गुड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा therefore W3 equal to Q3 V of R3 plus Q3 V1, V1 मतलब 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon R13, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी R13, ये डिस्टेंस आएगा R13, ये डिस्टेंस आएगा R23, राइट। प्लस और किसने अपोज किया? V2 ऑफ R3। तो Q3 V2 मतलब जहां थर्ड चार्ज रखा है आपने, देखो थर्ड चार्ज जो था वो पहले चार्ज के फील्ड में था और वो सेकेंड चार्ज के भी फील्ड में है। तो Q1 का भी पोटेंशियल है और Q2 का भी पोटेंशियल है C पॉइंट पे। तो Q3 V2 और एट R3 मतलब Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज कौन से पॉइंट पे? C पॉइंट पे। तो ये कैसे आएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कौन से चार्ज का पोटेंशियल? सेकेंड का। कहाँ पे? तो R23, राइट। तो ये आ गया वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है अगर, तो इट इज W1 प्लस W2 प्लस W3, राइट। तो आ जाएगा व्हाट इज W1, व्हाट इज W1। एक चीज याद रखना, अभी इसको याद कैसे रखते हो समझ लो। पहले तो पहले चार्ज को लाए या दूसरे को लाए या तीसरे को लाए, तीनों को एक्सटर्नल ने तो अपोज किया ही है,
राइट। तो Q1 V ऑफ R1 आएगा प्लस Q2 V ऑफ R2 आएगा प्लस Q3 V ऑफ R3 आने ही वाला है, ये तो है करेक्ट। फिर पहले को लाए तो एक ने ही अपोज किया था, दूसरे को लाए तो दो ने अपोज किया, उसमें से एक हो गया एक्सटर्नल, राइट। सेकंड चार्ज को लाए तो एक्सटर्नल ने अपोज किया, वो तो हमने लिख दिया यहाँ पे। कौन बचा? पहले ने भी अपोज किया था। जब सेकंड चार्ज आया तो पहले ने भी अपोज किया, वो रह गया। जब थर्ड चार्ज आया तो टोटल तीन अपोजिशन थे, राइट। एक था एक्सटर्नल, वो तो हमने लिख दिया। फिर था पहले ने भी अपोज किया और सेकंड ने। आपको याद है मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, तीनों कॉम्बिनेशन लिख देने। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो ये तीनों टर्म यहाँ से मिसिंग होते सिंपल। पर एक्सटर्नल फील्ड है तो तीनों चार्जेस को एडिशनली, चार्जेस ने एक दूसरे को तो अपोज किया ही, एडिशनली एक्सटर्नल फील्ड ने भी अपोज किया, तो ये तीनों टर्म भी आएंगे, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमारा यहाँ तक हुआ था। नाउ गोइंग अहेड, अब एक लास्ट थ्योरी टॉपिक रह गया रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। Then we will move ahead with conductors, insulators, etc., etc. That is potential energy of electric dipole in an external electric field. Potential energy of electric dipole in an external electric field. ओके, एक्सटर्नल फील्ड लिखा है लेकिन फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, हम मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। गुड। अब ये स्टार्ट करने से पहले वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक होता है मोमेंट ऑफ कपल, करेक्ट। One is moment of force and moment of couple. What do you mean by moment of force? For example, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दरवाजे का। You have a door. Door is fixed at one axis, hinges, जिसको आप हिंदी में बिजागरे बोलते हो, right? So you have a door. इस डोर को रोटेट करना है तो एक सिंगल फोर्स से भी कर सकते हो, नॉर्मली सिंगल फोर्स से लगाते हो आप। तो अगर खोलना है या बंद करना है तो you just apply a single force. एक फोर्स लगा दिया, it opens or it closes. Then you must remember one thing, that is जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन के अलोंग हम फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। The perpendicular distance between line of action and axis of rotation is called as moment r, denoted by r bar. Axis of rotation से पॉइंट ऑफ एक्शन तक या लाइन ऑफ एक्शन तक जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। टॉर्क, टॉर्क कब? जब रोटेशन होगा तब। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। यहाँ पे सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया था, इसलिए हुआ था हमने मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन, फोर्स मतलब सिंगल फोर्स। अब और एक टाइप का रोटेशन हो सकता है, दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रॉड है, लेट्स टेक अ रॉड, एंड अगर इसके दो एंड पे मैं फोर्स लगा दूं, एक फोर्स यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ पे, these two forces are equal in magnitude, opposite in direction, but they do not cancel out each other. कैंसिल आउट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फोर्सेस सेम पॉइंट पे नहीं है। अगर यही दो फोर्सेस ने सेम पॉइंट पे लगा था, if I apply these two forces at the same point, they will cancel out each other and the system will remain in equilibrium. Forces are balanced मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रहा है, इक्वल बट अपोजिट। व्हेन यू हैव टू फोर्सेस which are equal in magnitude but opposite in direction acting at two different points, then they tend to rotate the body. ये बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। देन देयर इज अ टॉर्क, यहाँ पे भी टॉर्क बोलते हो, वहां पे भी टॉर्क बोलते हो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो क्योंकि दो फोर्सेस है। और मोमेंट ऑफ कपल इन दिस केस
मतलब टॉर्क इन दिस केस इज डिफाइंड as magnitude of one of the forces into perpendicular distance between two forces. तो ये जो दो फोर्सेस थे, ये F फोर्स का, ये F फोर्स का, इन दोनों में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R बार क्रॉस F बार, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे R बार जो है इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यहाँ पे R बार है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ फोर्स, क्योंकि वहाँ पे एक ही फोर्स है, यहाँ पे दो फोर्सेस है, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल। अब एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कपल की बात करते हो तो टॉर्क इन दैट केस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the two forces into perpendicular distance between the two forces. इतना अगर बेसिक्स पता है तो नाउ वी कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है और यू मस्ट नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यू हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक्स आपको पता होंगे, ये असम्पशन है। व्हाट इज बेसिक आइडिया, मेरे पास टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस separated by a finite distance is known as electric dipole. Two equal plus q and minus q is called as dipole. A line passing through centers of both the charges, ये जो line है it is passing through centers of both the charges is called as axis of dipole. You must know dipole length of dipole is the distance between two charges L and L, correct? तो इतना पता होना चाहिए, और एक चीज पता होना चाहिए, that is called as electric dipole moment. What is electric dipole moment? Charge into 2L. So electric dipole moment is defined as the product of magnitude of one of the charges. दोनों में से एक चार्ज लो, उसका मॉड लो Q into distance between two charges, मतलब 2L, इसको बोलते हो electric dipole moment. Electric dipole moment is defined as product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges. It is a vector quantity which is directed from negative to positive. ये important है, it is very important thing. Then now what we have is, हमारे पास ये डाइपोल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इसको भूल जाता है फिलहाल, just forget about this. So what do we have is, we have a dipole, electric dipole. मान लेते हैं ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे है प्लस Q चार्ज, और ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट पे है माइनस Q चार्ज है, तो उल्टा कर लो चलेगा। व्हाट यू कैन डू इज, उल्टा कर लो ज्यादा बेटर, क्योंकि टेक्स्ट बुक का नोटेशन वैसा ही है। यू कैन पुट अ माइनस Q हियर एंड यू कैन पुट अ प्लस Q हियर, तो B पॉइंट पे प्लस Q और A पॉइंट पे माइनस Q। अब अगर आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिफाइन किया था तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इनटू E। याद रखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, बट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इनटू E। अब ये जो चार्ज है प्लस Q, ये एक्सटर्नल फील्ड में है, तो इस पे भी एक फोर्स एक्ट होगा। रिमेंबर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये अट्रैक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो देयर इज वन फोर्स हियर F, देयर इज अदर फोर्स हियर F, एंड इफ यू रिमेंबर ये दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था 2L, तो सेंटर से L उस साइड पे, L इस साइड पे, यहाँ तक क्लियर? तो आई विल नॉट राइट डाउन डिस्टेंस, यू नो ऑलरेडी, गुड। अब इमेजिन, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ा के रखना, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, वर्क डन।
फिजिक्स में जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी सुनोगे, वर्क डन, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन, इलास्टिक एनर्जी इज वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो वर्क डन। तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा। वर्क डन क्यों होगा पहले वो समझ लेते हैं। सपोज इनिशियली मैंने इसको ऐसा छोड़ दिया होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रख दिया इसको, इनिशियल एंगल इज लेट अस से थीटा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अभी अभी देखा, व्हेनेवर यू हैव two equal but opposite forces acting at two different points, they tend to rotate। तो यहाँ पे रोटेशन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वहां अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होगा, तो ये डाइपोल क्या होगा, ये डाइपोल होगा रोटेट। तो डाइपोल विल टेंड टू रोटेट। तो इमेजिन इसका रोटेशन होते 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 ये सिचुएशन आ गई, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये बन गया उसका नया ओरिएंटेशन। This is the new position and this angle is theta 0, right? अब टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल दिया नहीं, नोट्स में भी नहीं दिया, तो आपके समझने के लिए वो। तो इनिशियल एंगल कितना था, थीटा, फाइनल एंगल कितना है, थीटा 0। बुक में उल्टा बोला है, उल्टा मतलब सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, द आइडिया इज ये रोटेट हो गया, थीटा से थीटा 0 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एक टॉर्क है। रोटेशन कब होता है, जब टॉर्क हो। अब मुझे अगर इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाना है, मतलब व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू वांट टू टेक इट बैक फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, करेक्ट। तो पहले ऐसा था, अब ऐसा है, इसको वापस लेके जाना है, राइट। तो हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, ये ओरिजिनल टॉर्क है, और ये है क्लॉकवाइज। हमको इसको लेके जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई करेंगे, वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, थीटा 0 से वापस कहाँ ले जाएगा, थीटा पे। तो इसलिए हम बोलते हैं थीटा 0 इज इनिशियल एंगल एंड थीटा इज फाइनल एंगल। मतलब पहले जो रोटेशन हो गया, अब उसको छोड़ दो। अब आप बोलो कि वापस मुझे अगर उसको थीटा एंगल पे लेके जाना है, मतलब कहाँ से कहाँ लेके जाना है, थीटा 0 से थीटा पे, तो हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क इस पे एक्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। ये एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ओरिजिनल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा टॉर्क होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल टॉर्क। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, यू नीड टू रिमेम्बर, फिजिक्स में लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन याद होना चाहिए, अभी 2-3 बार रिपीट हो गया, तो यू शुड नो दिस नाउ। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, जो था O पे। यहाँ पे हमारे पास था एक चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, जो था A पे, उसको लाना था B पे। ऑफ कोर्स ये था R1, ये था R2। हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके लाए, dr हर बार क्या हुआ, वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड किया था, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन dw फ्रॉम पॉइंट A टू B। यहाँ पे वर्क डन होता है -FDR फ्रॉम R1 टू R2। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है R1, B का है R2। नोटेशन उल्टे भी कर सकते हो, डजंट मैटर। R2 को R1 बोल दो, R1 को R2 बोल दो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो हमने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए थे। हर बार हमने कैलकुलेट किया वर्क डन कितना हुआ, फिर वर्क डन कितना हुआ, फिर कर दिया ऐड, मतलब कर दिया इंटीग्रेट, करेक्ट। रोटेशनल मोशन मतलब एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन दे आर सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस। वर्क डन इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल एंगल, फाइनल डिस्टेंस, फाइनल एंगल। माइनस तो माइनस, वो बाद में देखेंगे हम, वी विल नॉट राइट डाउन माइनस फॉर द टाइम बीइंग, वो बाद में देखेंगे। आइडिया इज एफ, फोर्स की जगह पे आता है टॉर्क, डी आर की जगह पे आता है डी थीटा। तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, राइट। सिर्फ माइनस साइन छोड़ दो, माइनस साइन हम बाद में देख लेंगे, माइनस नहीं आएगा वहां पे। तो
मतलब करना क्या है, मतलब हमको करना ये था, हमको इसको वापस से लेके जाना है थीटा पे। तो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक। और वर्क डन in this case force into displacement मतलब torque into displacement, कौन सा displacement, angular displacement। और ये and this torque is external torque, this external torque should be equal to original torque। ओरिजिनल टॉर्क क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको छोड़ के कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड में दोनों होने चाहिए सेम। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा लगा दिया ना आपने तो और आगे चले जाएगा। मतलब हमको करना क्या था, हमको थीटा 0 से थीटा करना था, ज्यादा लगा दिया तो ओवरशूट हो जाएगा, वो ज्यादा लगा नहीं सकते। तो यू मस्ट नो दैट यू शुड अप्लाई टॉर्क, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल टॉर्क, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज शुड बी इक्वल। और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ थीटा आता है तो हम इसको लिखते हैं ऑफ थीटा, ऑफ थीटा। क्यों आता है फंक्शन ऑफ थीटा, पता है? 11th स्टैंडर्ड में आपने टॉर्क डिफाइन किया था पी बार क्रॉस ई बार, वेयर पी बार इज, P bar is, अभी तो बताया था, P bar is electric dipole moment which is directed from minus charge to plus charge। तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसके मॉड वैल्यू की बात करूंगा तो आएगा Pe sin थीटा, क्योंकि P बार क्रॉस E बार इज Pe sin थीटा, P बार डॉट E बार होता तो Pe cos थीटा आता, और P बार क्रॉस E बार ये वेक्टर होता है, इसलिए मैंने मॉड लिखा है, मॉड। अगर पी बार डॉट ई बार लिखते तो मॉड लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, ये क्या है, वेक्टर। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, आपको दिख रहा है ये थीटा पे डिपेंड करता है, इसके लिए लिखते हैं हम टॉर्क द फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो हमको अभी करना क्या है, इंटीग्रेशन, दैट्स इट। तो वर्क डन इन रोटेटिंग, एंड रिमेंबर ये एंगल थीटा है, this angle theta is between p bar, what is direction of p bar, negative to positive, तो ये आ गया p bar आपका from minus to plus। और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, the angle theta is angle between electric dipole moment and electric field, theta is the angle between electric dipole moment and electric field। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field, right। तो total work done W is equal to integration theta 0 to theta external torque is equal to Pe sin theta, Pe sin theta and d theta। यहाँ तक क्लियर, गुड। P क्या था, P का फॉर्मूला Q into 2L, Q is constant, 2L is constant, so P is constant। E क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने चेंज किया क्या, नहीं, तो वो क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, कहां से, थीटा 0 से थीटा तक। यू मस्ट नो डेरिवेटिव्स इन इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। cos थीटा का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा है। if derivative of cos is minus sine, then integration of sine is minus cos। and for your knowledge, जहां जहां पे पहला वर्ड सी आया, cos, cosec, cot, डेरिवेटिव इज माइनस माइनस माइनस, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot, what is derivative of cosec, okay, so what is derivative of cot, minus cosec square कि just cosec, cosec square। ठीक है, अभी नहीं याद रहा तो आई विल लीव दिस एज एन एग्जांपल, सेल्फ प्रैक्टिस। नहीं समझ में आया ना, नहीं याद रहता, याद रखना ही नहीं है। व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर रेटिफिकेशन, यू नॉट सपोज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v पता है, पता है ना,
तो कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना, ये रूल अप्लाई करना, अपने आप आ जाएगा। ओके, तो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैथ्स अपार्ट, कमिंग बैक टू फिजिक्स। तो साइन थीटा का इंडिकेशन क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 से थीटा तक। माइनस साइन को अगर आपको हटाना है, लिमिट्स को करना पड़ेगा इंटरचेंज, राइट। जस्ट अ वार्निंग, आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स में नहीं, फॉर्मूला कुछ और ही दिया है। वो कब आएगा वो बताऊंगा, लेकिन दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट वर्क डन। तो वो फॉलो मत करना, फॉलो ये करना है आपको। तो यू विल हैव पीई अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट? थीटा 0 माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया वर्क डन। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So this is potential energy of electric dipole in an external electric field. कौन सा? external uniform electric field. Clear? अब imagine मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई बार, और ओरिजिनली मतलब इनिशियली अगर डाइपोल ऐसा होता, मतलब डाइपोल का एंगल कितना है? 90. व्हाट इज इनिशियल एंगल? 90. व्हाट इज cos 90? What is cos 90? 0. तो अगर cos, if initially dipole is aligned perpendicular to the electric field, मतलब initial angle is 90, तो initial potential energy मतलब potential energy will be cos of 90 is 0 minus cos theta, तो ये आ जाएगा minus PE cos theta। क्लियर यहाँ तक? तो आपके बुक में डायरेक्ट ये लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनिशियली डाइपोल ये एक्सटर्नल फील्ड को क्या होगा? परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? ये हम एज अ स्पेशल केस देख रहे हैं। तो स्पेशल केस नंबर 1, दिस इज स्पेशल केस नंबर 1। इफ इनिशियल एंगल इज 90, 90 मतलब इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पीई cos थीटा। अब दूसरा केस भी ले लो, दूसरा केस ले लो। इफ थीटा इज 0, थीटा इज 0 मतलब डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इनिशियली अगर if initially they are parallel, मतलब angle is 0, तो cos theta 0 will be equal to 1, जाएगा 1, therefore potential energy will be PE 1 minus cos theta। तो ये आ गया स्पेशल केस नंबर 2। ओके, तो मैं आई विल रिपीट दिस अगेन एंड वी विल फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप अगेन। सिंपल है। तो वर्क डन फिजिक्स के हर एक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हर एक कॉन्टेक्स्ट में कहाँ से आता है? वर्क डन से आता है। वर्क डन कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट हो, राइट। अब स्टार्ट कहाँ से करोगे? हमारे पास क्या था? डाइपोल। डाइपोल में चार्ज क्या है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट। तो यू स्टार्ट विद considering a dipole inside external field. Okay, so let us consider an electric dipole, consisting of charges plus q and minus q located at points A and B respectively, right। और आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज लेंथ ऑफ डाइपोल? 2 है, राइट। let 2L be the length of dipole, अब यहाँ पे बोला ही है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ मैं इसको बोल देता हूँ इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
ई, राइट। तो ये जो डाइपोल है ये एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। यहाँ तक क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, वर्क डन से आता है, राइट। तो टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल रोटेट। किसको रोटेट करोगे, डाइपोल को। कहाँ से, इनिशियल एंगल थीटा 0 से एंगल थीटा तक। टू फाइंड potential energy of this system, I am tired of writing dipole again and again, so of this system we will find work done, we will find work done in rotating dipole from initial angle theta 0 to final angle theta। नोट्स में थोड़ा वर्डिंग अलग होगा, डजंट मैटर, फिजिक्स इज नॉट चेंजिंग तो डजंट मैटर। अभी आपने एंगल किसने मेजर किया बता दो, वेयर एंगल इज मेजर्ड बिटवीन, किसमें एंगल, किसमें था, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेयर एंगल इज मेजर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट and electric field right। work done in rotating, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट होगा, आई एम नॉट मेंशनिंग बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हम अभी मिनिमम फिगर रखने वाले हैं, नहीं तो लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन। क्या लिखोगे यहाँ पे, आप बोलोगे since this electric dipole is in external electric field, a torque acts on this electric dipole, right, correct। to neutralize this torque we apply external torque, okay, clear। so that part I am skipping, मैंने लिख दिया, to find potential energy of the system we will find work done rotating dipole from initial angle theta 0 to final angle theta, okay। तो हमको ऑलरेडी पता है we will find work done तब होगा जब एक्सटर्नल टॉर्क होगा। फोर्स के बिना डिस्टर्बेंस होता है क्या, नहीं। तो वर्क होता है क्या, नहीं। टॉर्क के बिना डी थीटा होगा क्या, नहीं। तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू राइट डाउन वर्क डन, मतलब आपने पहले ही बता दिया कि एक्सटर्नल टॉर्क लगने वाला है, फिर भी अगर आपको मेंशन करना है तो आगे कर देंगे। सो वर्क डन इज गिवन बाय W integration from initial angle to final angle T external of theta into d theta। अभी बता दो, बोल दो where T external is external torque, करेक्ट। और ये एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अभी वापस इतना लिख दो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार, तो लिख सकते हो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P bar and E bar. Therefore, work done W is equal to from initial angle theta 0 to final angle theta, torque external कितना था, PE sin theta and D theta. Correct? Clear यहाँ तक? Is this clear? Sure? Or you want me to repeat it? No? Okay. तो P क्या है? Constant है। क्यों constant है? क्योंकि वो Q और 2L पे डिपेंड करता है। Q कांस्टेंट, 2L कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट, P कांस्टेंट। तो P कांस्टेंट, E एक्सटर्नल फील्ड है वो भी कांस्टेंट, थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, देयरफॉर W इज इक्वल टू PE
अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा, तो इट इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। तो W इक्वल टू पी ई, माइनस साइन को हटा दो एंड लिमिट्स को कर दो चेंज, इंटरचेंज। देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू पी ई cos of theta 0 minus cos of theta, right? By definition, this work is stored in the form of potential energy. So by definition, this work done is stored in the form of potential energy. Therefore, what you can write is, आप लिख सकते हो इसको, therefore work done W equal to U, बट यहाँ पे जैसे आपको याद होगा दो चार्जेस के केस में क्या लिखा था, U of R 1/4πε0 Q1 Q2 by R, वो फंक्शन ऑफ R था, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो U of थीटा इक्वल टू PE कोसाइन ऑफ इनिशियल एंगल थीटा 0 माइनस कोसाइन ऑफ फाइनल एंगल थीटा, cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब स्पेशल केसेस में स्पेशल केस नंबर 1, if dipole is initially aligned perpendicular to external field, that is if initial angle theta 0 is equal to 90 degree. Therefore, potential energy is PE cos of 90 minus cos of theta. So therefore, U is equal to PE 0 minus cos theta. Therefore, U is equal to minus PE cos of theta. ये आ गया आपके पास potential energy when initially dipole was perpendicular to external electric field. अब perpendicular हो गया, फिर क्या रह गया, parallel। तो अब if dipole is initially aligned parallel, if dipole is initially aligned parallel to external electric field, मतलब theta 0 is 0 degree, is aligned parallel, right? तो theta 0 ये आ गया आपके पास 0 degree, so therefore what you will have is, therefore U will be equal to PE cos of 0 minus cos of theta. What is cos 0? 1. U equal to PE 1 minus cos theta. तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट इन जनरल you must remember the general formula, P cos of theta 0 minus cos theta. फिर डिपेंड करता है एंगल टू एंगल, इनिशियल एंगल 30 डिग्री भी बोल देंगे, 60 भी बोल देंगे, 45 भी पूछ बता सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस, गुड। So now we can solve some questions related to whatever we have learned so far. ध्यान यहाँ पे, you need to pay attention here. Example 8.7, a short electric dipole has dipole moment of 1 into 10 power minus 9 कूलम मीटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये चार्ज इंटू लेंथ होता है, चार्ज कूलम में होता है, लेंथ मीटर में होता है, तो कूलम मीटर बराबर बोला है। Determine electric potential due to dipole at a point distance 0.3 meter from the center of dipole. मतलब जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 0.3, मतलब क्या दिया है, आर की वैल्यू। कहाँ पे फाइंड करना है, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन अ लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस।
तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या है हम देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस? डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या? P 10⁻⁹ कूलम मीटर, राइट। उसके बाद क्या दिया है हमको? R कितना दिया है हमको? 0.3 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है? हमको तीन चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, नंबर 2 पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, ये सबसे डिफिकल्ट केस है एज यू नो, पता है ना? जीरो, राइट। तो पोटेंशियल एट इक्वेटर इज ऑलवेज जीरो। तो वी इक्यू फाइंड करना है। तीसरा फाइंड करना है वी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देन एज यू नो फॉर्मूला तीनों के लिए सेम ही लगने वाला है। यू मस्ट रिमेंबर डाइपोल का पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos theta by r square. Once you know this, तो solving is very simple thing। और एक्सिस पे तो आपको पता है ये प्लस या -1 होगा, क्योंकि एक्सिस मतलब एंगल इज 0। तो मैं एक ही लूंगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 या फिर 180 दोनों आते हैं, हम एक ही लेंगे, दैट इज 0। Therefore v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो v विल बी इक्वल टू, चलो पहले फॉर्मूला लिख ही देते हैं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज देन इट इज वेरी सिंपल। और कहाँ फाइंड कर रहे हो? एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो। एक्सिस पे फाइंड करना मतलब थीटा की वैल्यू से 0 डालना है। तो v एट एक्सिस इज इक्वल टू 9 × 10⁹। p की वैल्यू थी 10⁻⁹, cos ऑफ 0, r था 0.3, 0.3 मतलब 3 × 10⁻⁻1, इसका होगा स्क्वायर। ये 10⁻9 और -9 कैंसल, cos की वैल्यू 1, ये 9 × 10⁻⁻2, ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट, करेक्ट। 10⁻⁻2 ऊपर आके 10⁻+2, तो कितना आएगा? 100 वोल्ट। आ गया 100 वोल्ट। नंबर 2 एट इक्वेटर, यहाँ सोचना ही नहीं है, 0 करना है तो करो, लिखो थीटा की वैल्यू 90 करो, डजंट मैटर। नंबर 3 at some point which is at 60 degree, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos of 60। अगर आपको पता है cos 60 कितना कितना 1/2, ये तो पहले ही फाइंड किया कि नहीं? ये किया कि नहीं फाइंड? cos 0 क्या था? 1, तो क्या बचा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p by r square। तो ये तो 100 है, cos 60 हाफ है, तो कितना हो गया? 50 हो गया। इवन इफ you don't want to write it that way, तो लिखो फिर पूरा 9 × 10⁻9 into 10⁻�9 into half upon 9 × 10⁻⁻2, cancel 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 cancel, 100/2 which is equal to 50 volt। Done। So this is how you are supposed to solve this question। Next question, two charges 5 × 10⁻⁸ coulomb and -3 × 10⁻⁸ coulomb are located 16 centimeter apart। At what point or points, point या फिर points on the line joining two charges is the electric potential 0? Take potential at infinity to be 0। हमें दो चार्जेस दिए हैं 5 × 10⁻⁸ coulomb एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम, इन दोनों का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, मतलब एक्सिस पे, एक्सिस से कौन से पॉइंट या पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इक्वेटर पे 0 होगा, इट कैन बी 0 एट एक्सियल ऑल्सो, एट एक्सियल ऑल्सो। तो हमारे पास जो चार्ज है Q1, ये है 5 × 10⁻⁸ कूलम। जो चार्ज है Q2, इट इज -3 × 10⁻⁸ कूलम। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू is 2L and 2L is nothing but, as you know, कितना? 16 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, देन एट व्हाट पॉइंट्स पूछा है, तो अभी पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। हमको पूछा है किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है,
चलो सिर्फ उतना फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंड यू मस्ट जस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by distance. Distance is R, X, D जो लोगे वो whatever it is. Then imagine ये वो line है, and imagine you have a charge Q1 charge located over here and Q2 charge is somewhat over here. ये आ गया Q1, ये आ गया Q2। अब दो पॉइंट्स पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैन बी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो या तो इन दोनों के बीच में कहीं पे वो जीरो होगा, लेट अस से P पॉइंट पे, या फिर इस चार्ज के उस तरफ P डैश पे, या फिर इस चार्ज के इस तरफ P डैश पे। तो यू हैव बेसिकली 2 points where potential can be zero, राइट। तो एक एक करके कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे केस 1 की। केस 1 मतलब P पॉइंट विच इज इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इमेजिन इन दोनों का डिस्टेंस है लेट अस से D, हमको पता है 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, इसको मैं बोल देता हूँ D। 12 को बोल देते हैं हम लोग D, जस्ट कॉल दिस एज D, राइट। और ये डिस्टेंस अगर x है तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स, राइट। तो 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं हम लोग। देन पोटेंशियल एट P अगर जीरो होना है, मान लो ये चार्ज 1 है, इस चार्ज 1 का पोटेंशियल P पॉइंट पे है V1, ये चार्ज 2 है, इसका पोटेंशियल है कितना V2, कहाँ पे P पॉइंट पे। तो इफ पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होना है तो सबसे पहले टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे। टोटल पोटेंशियल एट P is V equal to V1 plus V2, but according to the question क्या बोला है हमको, क्या जीरो होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू कि जो टोटल पोटेंशियल है दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब V1 plus V2 should be equal to 0. What is V1? 1 upon 4 pi epsilon 0 charge 1 upon distance. What is distance? X. Q1 by X. What is distance of charge 2? D minus X. Or charge 2 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 charge 2 upon D minus X. This is equal to 0. राइट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाद में देखते हैं, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 by X इक्वल टू माइनस Q2 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन D माइनस X। कैंसल एंड कैंसल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज Q1? 5 into 10 power minus 8, 5 into 10 power minus 8 upon X. What is Q2? Minus 3 into 10 power minus 8 upon D minus X. ये माइनस साइन अगर गलती से छूट गया तो गए। ये Q2 में क्या था, नेगेटिव था, ये Q2 क्या है, नेगेटिव है। अगर गलती से भी छूट गया तो आंसर विल बी रॉन्ग। ये आ गया आपका कैंसल एंड कैंसल। तो 5 by x इक्वल टू 3 अपॉन d माइनस x, तो 5d माइनस 5x इक्वल टू 3x। शिफ्ट, तो 5d इक्वल टू 8x, therefore x इक्वल टू 5d by 8, बट d कितना है, 16 सेंटीमीटर है by 8, 1 and 2 तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ से, Q1 से, तो Q2 से कितना, 6 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना था, 16। So therefore this is one point where potential is 0 and it lies at a distance of 10 centimeter from charge Q1 and 6 centimeter from charge Q2. Case 2, ये case 1 हुआ, this is case 1, remember this is case 1. Now let us look at case number 2.
केस नंबर 2 में व्हाट यू कैन डू इज हम सेम सिस्टम लेंगे, सिर्फ ओनली चेंज दैट वी विल डू इज आई विल टेक पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0 ऑन ईदर साइड, या तो यहां ले लो या वहां ले लो, आंसर सेम आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे वहां क्यों लिया, डजंट मैटर, यू टेक इट दैट साइड एंड सॉल्व, मिल जाएगा आपको आंसर वही। दिस टाइम ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दूंगा x, तो x डिस्टेंस p पॉइंट का q2 से है, q1 q2 में खुद में डिस्टेंस कितना था d, तो q1 का p पॉइंट से डिस्टेंस ये आएगा d प्लस x, करेक्ट, क्लियर यहां तक। वापस सेम स्टोरी, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बट ये डायरेक्टली मैं बोल दूंगा 0। व्हाट इज V1? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q, be careful, Q1 का डिस्टेंस P पॉइंट से D प्लस X, इट इज D प्लस X। रिमेंबर पहले X आपने मेजर किया था Q1 से, इस बार आप X मेजर कर रहे हो Q2 से, प्लस 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 upon, अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon 4 pi epsilon 0 चार्ज Q2 upon distance of point is x equal to 0, therefore 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon D plus X equal to minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 by X, cancel and cancel. This is not negative sign, this is therefore clear। तो आपको मिलेगा यहाँ पे Q1 upon D plus X। What is Q1 value? 5 into 10 power minus 8 and minus of minus 3 into 10 power minus 8 upon X, cancel and cancel। इसको solve कर लो, you will have 5x equal to minus minus plus 3d plus 3x, so 2x equal to 3d, so x equal to 3d by 2, 3 into d 16 by 2, 1 and 8, that is 24 centimeter। 24 centimeter कहाँ से? Q2 से, डिस्टेंस कहाँ से था? Q2 से, तो Q1 से कितना होगा? 24 plus 16 मतलब 40, राइट। Therefore x मतलब point at which V is 0 is 24 centimeter, is 24 centimeter from Q2 and 24 plus 16 x and d कितना था? 16, x कितना आया? 24, that is equal to 40 centimeter from Q1। अरे Q2 से x कितना आया? 24, तो x plus d कितना आएगा? 24 plus 16, तो कितना आएगा? 40, तो 40 कहाँ से है? Q1 से है। Is this clear? Okay, so that's it. Now this is solved.